वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, कैसे हो आप सभी बेटा? वेलकम टू द साइकोलॉजी क्लासरूम. I hope your examinations are gone well and you all have given your half yearly exam very good in a good manner. Now, as the exams are over, children, now you have to completely focus on your syllabus and try to understand the things, and whatever the demerits were there, whatever the points which you have not studied or not able to study earlier, try to catch up those things, those concepts. So here children, we are discussing the chapter 4, human development. Which chapter we are discussing? We are discussing the chapter 4. So firstly I should write down the chapter name. Chapter 4, human development. Okay. So children, we are discussing the chapter human development. In this chapter, if you have read this chapter and if you have seen the video, so there are so many things which we have discussed. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने इसमें डिस्कस की हैं. देयर आर सो मेनी थिंग्स. We discuss about the meaning of human development. We discuss about the processes, the biological, cognitive, socio-emotional. We discuss about some of the assumptions of human development, that human development is lifelong, human development is flexible, human development is influenced by historical condition, human development is also influenced by the culture. It is something which is sequential, predictable changes that take place in a person's life and that begin from conception and continue till death. Don't mistake the development with the growth. That also we have discussed. डेवलपमेंट को ग्रोथ से कोरिलेट नहीं करेंगे, मिस्टेक नहीं करेंगे कोरिलेट करने का. सेकेंडली, we also discuss some of the factors influencing human development. कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. ओके, where we get to know about the biological factor, heredity, which are influencing the human development, and the environmental factor. So we discuss about the nature and nurture. After discussion about these things, we also discuss about the models of human development, where we study about the Ury Bronfenbrenner model, which is known as contextual view of human development, where she talked about some of the systems like microsystem. We are living under these systems: microsystem, exosystem, mesosystem, macrosystem, and chronosystem. Then the second model which we have read is the Durranand Sinha model, D. Sinha model, and his model is known as ecological model of human development. Why I am revising these topics which you already have learned, and I have made the video separately on everything, but before starting a new thing, it should be recapitulated because it's very important for you all to not to forget any of these things. So
दुर्गानंद सिन्हा मॉडल इकोलॉजिकल मॉडल उन्होंने दिया था ह्यूमन डेवलपमेंट का. So he talks about the two kind of layer, if you have remember, the upper layer or the visible layer, and second is the surrounding layer. In the upper or the visible layer is come the home, school and peer group. The surrounding layer जो हमें which are not directly linked to each with ourselves, जो कि हमसे डायरेक्टली तो लिंक्ड नहीं है, बट वो कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे मूड को, हमारे टेम्परामेंट को, हमारे बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं. जैसे क्या इफ़ेक्ट करते हैं? जैसे कि इकोलॉजिकल कंडीशन, द जोग्राफिकल कंडीशन, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है. सराउंडिंग लेयर अकॉर्डिंग टू द डी सिन्हा मॉडल. क्लियर? After that, we have read about overview of developmental stages, where we have read about so many stages of human development. The first stage which we have discussed is the prenatal stage. Prenatal stage is a very important stage and it is the first stage of the human development and it is a period of conception to birth. कंसेप्शन से लेके बर्थ तक का जो पीरियड होता है वो प्रीनेटल स्टेज होता है, where the child is completely dependent on the mother for each and everything. It is a stage when the child is in the womb of the mother, or I had discussed so many things like if the mother, whatever the mother will entail, that have an effect on the child. What the mother will think, what the mother will behave, everything has an effect. After the prenatal stage, the infancy stage came, which is just after the birth. The newborn baby are in the infancy stage. 0 to 2 years is the period of infancy. 0 यानी just newborn से लेके 2 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो infancy stage में होते हैं. Clear? किस stage में होते हैं? Infancy. Now, in infancy stage, there are so many kind of development take place, like physical development, sensory motor development, cognitive development, socio-emotional development. So इन्फेंसी स्टेज हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में. लाइक द कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जब बात होती है तो द थ्योरिस्ट हु वर्क अंडर दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज द जीन पियाजे. जीन पियाजे ने इस पे काम किया था. ठीक है. जीन पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट बताए थे. सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंट्रीड ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल. सो इन्फेंसी स्टेज में जो बच्चा होता है वो सेंसरी मोटर स्टेज में होता है अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे. दिस इज अ स्टेज वेयर द ऑब्जेक्ट परमानेंस कंसेप्ट इज नॉट डेवलप्ड. आई टोल्ड यू ऑल ऑब्जेक्ट परमानेंस मीन्स ऑब्जेक्ट इज स्टेबल, ऑब्जेक्ट इज परमानेंट. यानी ये कंसेप्ट होता है कि व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. तो ये इन्फेंसी में होता है कि जो उनके सामने से हट गया वो उनके माइंड से भी हट जाता है. सो व्हाट इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड. इज इट क्लियर? ओके. सम ऑफ द मोटर रिफ्लेक्सेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूबॉर्न. कुछ मोटर रिफ्लेक्सेस भी प्रेजेंट होते हैं. रूटीन, मोरो, वेबिन्स्काई. ठीक है, ये सारे हमने डिस्कस किए हैं. सेंसरी डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम ऑब्वियसली विजुअल और ऑडिटरी की बात करते हैं. ये भी हमने डिस्कस किया है.
सोशल इमोशनल डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सोशल इमोशनल डेवलपमेंट में हमने डिस्कस किया है अबाउट द अटैचमेंट थ्योरी। अच्छा, अटैचमेंट थ्योरी में हमने ये वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज देयर विच इज़ रिलेटेड टू द बेबी monkeys and we got in finding that where the child get comfort, the child get attached. This is the concept. अटैचमेंट कैसे बनता है? अटैचमेंट बनता है बच्चों में, बच्चों को जहाँ से कंफर्ट मिलता है वो उससे अटैच होते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो मदर ही हो, मदर तो ऑलवेज ही अपने बच्चे को कंफर्ट देती हैं और बच्चा अ चाइल्ड ऑलवेज गेट अ कंफर्ट फ्रॉम द मदर, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। तो अटैचमेंट तो ऑब्वियसली हैपन है, बट अपार्ट फ्रॉम द मदर बच्चा अटैच उसी से हो सकता है जहाँ से उसे कंफर्ट मिले। So comfort is one of the factor and the finding which we get from the research study. After the infancy stage, we have discussed the childhood stage, which is a very important stage. बहुत ही ज़्यादा important stage होता है। कौन सा stage होता है? Childhood stage. It is a stage which is marked between infancy to adolescence. इट कम बिटवीन इन्फेंसी और एडोलसेंस के बीच में जो टाइम पीरियड होता है वो चाइल्डहुड का होता है। एंड चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ 2 to 11 years. So here we most of the time focus on childhood. Childhood is a period from 2 to 11 years. 2 से लेकर 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो चाइल्डहुड पीरियड में होता है। चाइल्डहुड पीरियड को मैंने डिवाइड भी करके आपको लास्ट वीडियो में बताया है, अर्ली, मिडिल और लेट। ठीक है, अर्ली, मिडिल एंड लेट। अर्ली, मिडिल एंड लेट। Childhood period is also divided into 3 categories: early, middle and late. Early childhood is a period from 2 to 5 year. Middle is the 5 to 7 year and late childhood is the 7 to 11 year. So 2 से लेकर 5 साल तक के बच्चे अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। नाउ इस पीरियड के बारे में आपने डेवलपमेंटल पढ़ा था, व्हाट आर द डेवलपमेंट टेक प्लेस ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। सो सबसे पहले हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा था, व्हाट इज द फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग द चाइल्डहुड। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है चाइल्डहुड में? इज इट क्लियर? चाइल्डहुड में फिजिकल डेवलपमेंट तो बहुत रैपिड ग्रोथ होता है। ठीक है, बॉडी स्ट्रेच होती है। ठीक है, 2 पैटर्न आपको आइडेंटिफाई होते हैं इसमें विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोपॉडल। ये मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो हम इसके आगे बढ़ेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड अप टू द फिजिकल डेवलपमेंट। नाउ मोटर डेवलपमेंट, द सेकेंड पार्ट बीइंग इन द चाइल्डहुड इज मोटर डेवलपमेंट। जब भी हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, whenever we talk about the motor development, obviously motor means something which is related to the movement. Motor means something which is related to the body movements and which require the use of musculars and glands. मोटर डेवलपमेंट। सो मोटर डेवलपमेंट में 2 मोटर स्किल्स आते हैं जो बच्चों में डेवलप होते हैं, ग्रॉस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल्स and fine motor skill. Gross motor skill and fine motor skill. These kind of skills the teachers usually, when the child goes into the school, so it is a period of obviously 2 to 5 years. So जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, टीचर्स इन्हीं सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि कैसे उसके ग्रॉस मोटर स्किल को डेवलप करें और किस तरीके से उसके फाइन मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल मीन्स इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ होल हैंड एंड व्हेन यू यूज योर फिंगर्स टू डू एनीथिंग, दैट इज द यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीजर से आप कोई चीज़ कट कर रहे हो तो वो फाइन मोटर स्किल का पार्ट है। ठीक है,
शर्ट्स के बटन लगाना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फाइन मोटर स्किल। ठीक है, शर्ट्स के बटन लगा रहे हो तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ, क्या फिंगर्स का यूज़ कर रहे हो बहुत, तो जहाँ भी हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं दैट इज़ अ फाइन मोटर स्किल। तो ये डेवलप किया जाता है क्योंकि पर बच्चों में सबसे पहले एज द चाइल्ड केम इनटू द चाइल्डहुड पीरियड, अर्ली चाइल्डहुड, तो ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप हुआ रहता है। धीरे धीरे स्लोली वो उसके में फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं। शुरू में ही फाइन मोटर स्किल्स नहीं रहते, ग्रॉस मोटर स्किल्स रहते हैं, फिर वो फाइन मोटर स्किल डेवलप होते हैं चाइल्ड में। ठीक है, किसी चीज़ को होल्ड करना, ये सब फाइन मोटर स्किल का पार्ट है। क्लियर? सो मोटर डेवलपमेंट में आप ये 2 पॉइंट्स लिख लीजिए। आगे बढ़ेंगे। मोटर डेवलपमेंट के बाद आपको नेक्स्ट जो उसमें पढ़ना है वो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ऑब्वियसली जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं चाइल्डहुड पीरियड में वो सेकेंड स्टेज में आ जाते हैं। सेकेंड स्टेज उनका होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। बच्चा जो है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है। राइट इट डाउन, प्री ऑपरेशनल स्टेज, एंड इसीलिए बोला जाता है कि प्री ऑपरेशनल थॉट होता है। प्री ऑपरेशनल थॉट डेवलप हो जाता है। प्री ऑपरेशनल थॉट जो है वो डेवलप हो जाता है। बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस ये डेवलप हो जाता है चाइल्डहुड पीरियड में। ठीक है, बच्चा जो प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाता है, ये चाइल्डहुड पीरियड में मैंने बताया था आप सभी को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अर्ली, मिडिल और लेट। तो अर्ली चाइल्डहुड का ये पार्ट है। ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड। आई शुड राइट इट ओवर हियर आल्सो, अर्ली चाइल्डहुड। प्री ऑपरेशनल थॉट अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है, यानी कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। प्लीज़ आप ये सारे पॉइंट्स लिखेंगे अपने नोट्स में। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अर्ली चाइल्डहुड में जो बच्चा 2 to 5 ईयर्स रहता है वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है अकॉर्डिंग टू दी जीन पियाजे। जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार जो बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में यानी 2 to 5 ईयर में प्री ऑपरेशनल स्टेज में रहता है, जहाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। यानी जो उनके सामने से हटा दो वो उनके माइंड से नहीं जाता, उनके माइंड में एग्जिस्ट होता है, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो परमानेंट है, वो उसका एग्जिस्टेंस है, ये उनके दिमाग में रहता है। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड वन ऑफ द पार्ट विच इज डेवलप इन द चाइल्डहुड, दैट इज प्री ऑपरेशनल थॉट। तो ये तो हमने सबसे पहला पढ़ा। नेक्स्ट क्या है, सॉरी आई हैव रिटन इट सेकेंड, सो बट इट इज नॉट सेकेंड, इट इज फर्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद नेक्स्ट आप आएंगे, आई होप आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट में आएगा चाइल्डहुड पीरियड में। प्री ऑपरेशनल थॉट के बाद सेकेंड चीज़ है जो होता है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है चाइल्डहुड में। ईगोसेंट्रिज्म मीन्स फोकसिंग ऑन सेल्फ, फोकसिंग ऑन सेल्फ। अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, दूसरों पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं इस स्टेज में। आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड पीरियड एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली एंड मिडिल। प्लीज़ राइट इट डाउन। अर्ली एंड मिडिल चाइल्डहुड तक जो बच्चे होते हैं यानी 2 से लेके 7 साल तक के बच्चे, ये ईगोसेंट्रिज्म होता है उनमें, अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ईगो का मतलब ये सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सेल्फ फोकस्ड होते हैं। अपनी ही उनकी एक दुनिया होती है, वो अपनी ही दुनिया में रोल ऑन करते रहते हैं। ठीक है, उन्हें पेरेंट्स क्या कर रहे हैं उससे उनको नहीं समझ में आता।
ठीक है, तो ईगोसेंट्रिज्म का कंसेप्ट रहता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, सेंट्रेशन। सेंट्रेशन भी उनमें दिखता है। सेंट्रेशन वर्ड बना है सेंटर, सेंटर से बना है। सेंटर मतलब फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, फोकसिंग ऑन ओनली वन एस्पेक्ट, एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं, ठीक है, लेकिन अदर पे नहीं था। ईगोसेंट्रिज्म फोकस ऑन सेल्फ, एक ही एस्पेक्ट पे फोकस करना, किसी भी चीज़ की एक ही एस्पेक्ट को देखना, एक ही पॉइंट को। जैसे वन ऑफ द एग्जाम्पल इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर वर 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड one glass is of broad and one glass is of narrow, ठीक है, बट इट इज़ लॉन्ग बट नैरो, और एक जो है वो शॉर्ट है बट ब्रॉड है। तो बच्चे को जब आप एक चाइल्डहुड पीरियड वाले बच्चों को दिखाएंगे जो अर्ली चाइल्डहुड में है, तो वो बोलेंगे मुझे वो बड़ी ग्लास चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि दैट द अनदर ग्लास विच वॉज शॉर्ट बट इट वॉज ब्रॉड, बट दैट ग्लास इज लॉन्ग बट इट इज़ नैरो, बट उन्हें ये दिख रहा है कि वो ग्लास जो है वो बड़ी है, तो मुझे बड़ी चाहिए। तो क्यों? बिकॉज ऑफ दी सेंट्रेशन, वो एक ही चीज़ पे फोकस कर पाते हैं इस स्टेज में। तो ये भी चाइल्डहुड पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेंट्रेशन। ये पॉइंट्स आप लिख लो तो आगे बढ़े हम लोग। आई होप आपने लिख लिया होगा। सेंट्रेशन के बाद इनमें क्या डेवलप होता है? फोर्थ पॉइंट, क्या डेवलप होता है सेंट्रेशन के बाद? बताइए। सेंट्रेशन के बाद इनमें एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब होता है जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको भी लिविंग थिंग समझना। ये भी चाइल्डहुड पीरियड का पार्ट है, ये मिडिल चाइल्डहुड का ज़्यादातर पार्ट होता है, ठीक है। जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, एनिमिज्म बना है एनिमेट से, इनएनिमेट यानी नॉन लिविंग थिंग, उनको भी एनिमेट करना यानी लिविंग थिंग समझना। जैसे आपने छोटे बच्चों को ज़रूर ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, जैसे गुड्डे गुड़ियों की शादी कराते हैं, दे यूज टू मैरिज, उनके घर बनाना, खाना बनाना, तो नॉन लिविंग थिंग को भी वो लिविंग थिंग समझते थे। डॉग, उनके पास कोई टॉय है तो दे नेम्ड देयर टॉय बुजो एंड दे प्ले विद इट, बुजो कम हियर, सो दे मेक द नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो लिविंग थिंग। एनिमिज्म। So is it clear? Animism, centration, egocentrism, pre-operational thought, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट है ये अर्ली और मिडिल का है। अब आते हैं लेट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड की बात हो रही, लेट चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट ही पार्ट चल रहा है, ये दिमाग में आप बैठाएंगे। अभी हमने फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा, मोटर डेवलपमेंट पढ़ा और कॉग्निटिव पढ़ रहे हैं। अभी हमें सोशल इमोशनल पढ़ना है और मॉरल भी पढ़ना है, ठीक है। सो अब आते हैं लेट चाइल्डहुड। अर्ली मिडिल का पार्ट था। अब लेट चाइल्डहुड में, लेट चाइल्डहुड अकॉर्डिंग टू द जीन पियाजे, बच्चे जो होते हैं वो थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। थर्ड स्टेज विच इज द कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, complete operational stage, which is a stage of 7 to 11 years. Late childhood में अभी भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब ये होता है कि अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों में डेवलप नहीं होती है। जो कंक्रीट यानी कंक्रीट वो ऑब्जेक्ट, टू काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट मतलब विच यू आर एबल टू टच, दिस इज दिस लाइक अ मार्कर, ये कंक्रीट है, आप छू सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट आर देयर विच आर नॉट एबल टू सी, नॉट एबल टू टच, यू कैन फील इट ओनली। तो अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट नहीं डेवलप हुआ रहता। जो चीज़ जो चीज़ फिजिकली प्रेजेंट नहीं है वो उसको मेंटली इमेजिन नहीं कर पाते हैं अप टू द 11 ईयर्स। उसके बाद जब वो एडोलसेंस पीरियड में जाते हैं, बच्चा 11 साल के बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। जो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाते हैं, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में उनकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाती है। अभी तक वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में रहते हैं। सो हियर इन दिस वीडियो आई हैव डिस्कस अप टू द कॉग्निटिव डेवलपमेंट
ड्यूरिंग चाइल्डहुड। कोई डाउट आपको रह जाता है तो यू विल आस्क मी इन द क्लासरूम चिल्ड्रन। ओके, थैंक यू सो मच।